ओके, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ये सारी चीजें करोगी एंड तुम्हें उसका प्यार मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी एंड ही इज गोना कीप यू फॉरएवर, then my girl, you're wrong. Because this girl was also wrong at some point of time, and now I'm here to share my dating experience, what I did wrong, and what every woman should not do in a relationship. Because मैंने ये सारी चीजें करी as per the books, as per the social media कि ये सारी चीजें करेंगे तो maybe he will stay more, he will like you more, he will love you more, he will admire you more. Please stop it. I've done all of it and I've seen the consequences. I got dumped by a 2 on 10 guy who wanted me at first place. And guess what? I got dumped. And I have no shame admitting that because I have done certain things, over exaggerated my love, and lost my self respect, lost my dignity, lost my self esteem in that relationship, only to know that this guy does not want to continue this relationship and just wants to give up on me so easily. That is why, girls, I'm making this video. Stay tuned on this video because you need to know what you need to not do in your relationship. So, let's get into the video. Hi everyone, my name is Fiza Sana Khan. जो मुझे नहीं जानते हैं, I am a Mumbai based content creator and आज मैं बनकर आई हूँ एक रेड वॉकिंग रेड फ्लैग. देखा, रेड फ्लैग हूँ नहीं ना, तो मुझे पता नहीं इसे प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं. आई एम अ वॉकिंग रेड फ्लैग टुडे बिकॉज मैं थक गई हूँ ग्रीन फ्लैग बनते बनते एंड गेटिंग डम्प्ड बाय रेड फ्लैग गाइज. So anyways, not wasting your more time, let's get into the video. First thing, do not be too emotionally available for this guy. So girls, हमारी क्या गलती हो जाती है ना when we are in a relationship, because we are women, because we are girls, एक लड़कियों का इमोशनल साइड ज्यादा होता है and that is beautiful. It's really beautiful to embrace that, but at the same time you need to protect it as well. And देखना चाहिए कि इंसान कैसा है. So what happened with me was that when I was in a relationship, it was a very beautiful relationship, but it's just that I was too emotionally available for this guy. So if usse kuch problem ho and if uske family mein kuch problem ho, instead of just listening to him and like like a feminine energy would normally just listen to him, like calm him down, I would literally try to fix his life. And कि गलतियाँ हम लड़कियाँ बहुत करते हैं इन अ रिलेशनशिप, हमें ऐसा लगता है उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, सो आई हैव टू फिक्स इट फॉर हिम एंड वी ट्राई अस, हम लोग ट्राई करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट इफ यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू फिक्स हिज लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम्स, कि उसकी मम्मी ने ये किया, उसके चाचू ने ये किया, उसके फादर ने ये किया, उसकी बहन ने ये किया, उसके दोस्तों ने ये किया, एंड देन इट्स लाइक योर वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड हिज वर्ल्ड. एंड इट्स सुपर स्टूपिड बिकॉज मैंने ये चीज करी एंड आई जस्ट मेरी एक अलग ही साइकोलॉजी बन गई थी दैट मैं सिर्फ उसके घर वालों के बारे में, सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लग गई. हिज करियर, हिज जॉब, हिज बिजनेस, हिज फैमिली. I started to give so much of energy to his problems. Like my life became all about his life, and which is so very wrong, especially when you are in an early relationship. So my relationship lasted for like 1.5 year maximum. But this is what I did wrong. And why is it wrong? Because you lose yourself, and then when this relationship ends, खुदा ना खास्ता आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए कभी किसी भी वजह से, इफ ही चीट्स, इफ ही डज नॉट चीट, फॉर एनी रीजन, इफ इट एंड्स, then your nervous system is like, what the fuck am I supposed to do now? बिकॉज तुम तो सारे टाइम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे, तुम अपनी प्रॉब्लम्स तो देख ही नहीं रहे थे, और अगर देख भी रहे थे तो बहुत कम लेवल पे देख रहे थे. तुम्हारा ज्यादा फोकस तो उसकी प्रॉब्लम्स पे था, तो तुम उसी के सोच में पड़ जाते हो. एंड जब अब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो तुम सोच में पड़ जाओगे, अब क्या करूं, अब वो लाइफ में थ्रिल नहीं है, अब वो लाइफ में मजा नहीं है. बिकॉज ये मेरे साथ हो चुका है. सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, stop being emotionally available to guys, because he is the provider, he should be the problem solver. I'm not saying you that do not help him, do not suggest him, but do not be the main person who's trying to fix and navigate life. It's his job, उसे करने दो. तुम हर चीज की फिक्सर मत बनो, बिकॉज अगर तुम ये कर रही हो तो धीरे धीरे शायद तुम ही फिक्सर बन जाओगे उस रिलेशनशिप में, या तो फिर जब रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तुम्हारी लाइफ तुम्हें अपनी लगेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो किसी और की थी. सो ये गलती मत करना गर्ल्स. डू नॉट बी टू इमोशनली अवेलेबल
for your man, for your guy. Next one is going to be something very controversial, but hear me out before you judge me. Do not be too loyal to him. So इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाओ पार्टी करो चीटिंग करो हैव योर हुकअप्स हैव योर सिचुएशनशिप्स व्हाइल यू आर इन अ रिलेशनशिप. मेरा वो मतलब नहीं है गाइस. सो मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है डू नॉट बी टू लॉयल इन योर रिलेशनशिप. सो देयर इज दिस टर्म टू लॉयल. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट जब हम रिलेशनशिप में होते हैं हमारे रूटीन्स हमारे कल्चर्स हमारा सोशल सर्कल सब उस पर्सन के आसपास होने लग जाता है. फॉर गर्ल्स हु डू दिस ओके कुछ ऐसे भी होती है जिनका अपना एक सोशल सर्कल होता है जो अपनी प्रोफेशनल पर्सनल हर लाइफ को बैलेंस आउट करके चलती है बट मैं नहीं कर पाई इसलिए मैं बता रही हूँ. सो बाय what I mean by saying too loyal is that, for example, what happened in my relationship was that I had a very close friend of mine. He was my childhood friend, and obviously he's a guy. Okay, so my ex-boyfriend he never liked that guy, and because of that, he did not want me to hang out with him. Not that I'm saying that he was right or wrong. वो शायद अपनी जगह पर सही था because he was a little possessive and it's fine. मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गलत था. But the problem is that मेरे लाइफ में और कोई दोस्त ही नहीं है. I am a very lonely person and I love that. It's not that कि ये मजबूरी है मेरी. कुछ हद तक है भी क्योंकि मुझे सही दोस्त मिलते नहीं और अगर मिलते तो टिकते नहीं है टिक जाते तो पता नहीं क्या ही हो जाता है खत्म हो जाती है दोस्ती. सो मेरी दोस्ती चलती नहीं है ज्यादा टाइम तो हो सकता है आई एम द प्रॉब्लम आई एम द रेड फ्लैग. बट वट एवर इट इज आई जस्ट हैव वन मेल फ्रेंड एंड ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड ही इज अ वेरी गुड गाय. ही हैज नो एज सच बैड इंटेंशंस ऑफ लाइक यू नो जो टिपिकल लड़के होते हैं इसको जरा यहाँ वहाँ टच कर लूँ या घुमा लूँ एक्सेट्रा जो भी लड़कों की सोच होती है. सो ही इज नॉट लाइक दैट. ही कम्स इन माई फैमिली के साथ उठता बैठता है एंड माई मॉम डैड नोज हिम दे ट्रस्ट हिम रियली वेल एंड इवन आई हैव मेट हिज फैमिली. सो इट्स लाइक दैट. But since my boyfriend did not like this guy, I stopped hanging out with this guy. And by hanging out, I don't say that मैं इसके साथ clubs जाती थी या pubs जाती थी. I am not a club person. I don't smoke. I don't drink. I don't do any of that shit. Okay? So I had a very pure loyal friendship towards this guy. हम जाते भी थे तो maybe एक restaurant, mall, ऐसी सब जगह जाते थे, public spaces में जाते थे. But this also my boyfriend did not like it to a certain extent. तो उससे होने क्या लग गया ना I started dumping my friend, this guy, and मैंने इससे मिलना बंद कर दिया. कुछ टाइम तक तो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी when I was in a relationship because my guy, my boyfriend, he was very fulfilling guy, you know, like he was very available to me emotionally, mentally, physically, spiritually, emotionally, financially. He was there for me, but फिर दुनिया वही हो जाती है एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है. तो अब हो क्या गया है नाउ दैट द ब्रेकअप हैज हैपेंड I have literally no one around me. And it's so sad because now this guy, my boyfriend, he hangs out with his friends. Obviously, they are male friends. He did not have any female friends, but he has like a good amount of male friends, and he's hanging out. He's going to restaurants and everything, and he's normalizing his life. But I don't have friends. I only had this person as my friend, and fortunately, ये जो मेरा friend है, he has come back into my life, and he is pretty chill about it. He was like चलेगा यार it's okay. बट गेस वॉट कई कई जगह हमारी दोस्तियां टूट जाती है हमारे रिलेशनशिप्स की वजह से. सो दैट इज व्हाट आई से डू नॉट बी टू लॉयल इन योर रिलेशनशिप्स बिकॉज उससे हो ये जाता है कि ये इंसान ये शख्स आपको अकेला कर देगा जिंदगी में ना आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आपका रिलेशनशिप टूटे ना. तो क्यों उस नौबत तक आने देना है. लाइक वाई डू यू वॉन्ट टू बी सो लोनली इन योर रिलेशनशिप एंड जस्ट द टू ऑफ यू हम दो हमारी दुनिया. वेल अगर वैसा है तो अच्छी बात है बट मेरे केस में इट वॉज जस्ट वन साइडेड. आई वॉज टू लॉयल फॉर दिस गाय यू नो. ही यूज्ड टू हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड बहाना ये था कि वो तो लड़के हैं आई अंडरस्टैंड बट एट द सेम टाइम मेरे पास कोई जेन्युइन दोस्त नहीं है ना. मेरे पास तो यही एक दोस्त है तो उसमें क्या गलत है अगर मैं घूम लूँ तो. बट एनी वेज आई वोंट से दैट ही इज राइट और रॉन्ग. वो शायद अपनी जगह सही है मैं अपनी जगह सही हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड यू हैव टू चूज योर सेल्फ गर्ल्स. So that is the reason I'm saying. And iske saath saath not just in friendships, even in your routines. So my routines was usually like I used to get up, I used to have my warm water, I used to journal, I used to meditate, and then I used to pick up my phone and check my messages.
But when I got into relationship, I skipped all of that only to check his messages, only to check his good morning baby. And it sounds really nice up to a certain extent, but it's not good in the long run, because एक ही चीज हो जाती है, आप बहुत चिपकू बन जाते हो. एंड जब तक रिलेशनशिप है तब तक तो बहुत मजा आता है ये सब चिपकूपन में, बट जहाँ रिलेशनशिप खत्म हुआ, लग गए आपके. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा ये सोचकर करो कि रिलेशनशिप खत्म हो सकता है तो इसलिए मैं ये सब चीजें थोड़ा लिमिट में करो. आप बेशक प्यार करो, दिल खोल के प्यार करो, कटना है तो वैसे भी कट ही जाएगा, बट लेकिन थोड़ा सावधानी बरतो, क्योंकि ये सब चीजें नहीं करोगे तो तकलीफ और होगी. ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं होने वाली, तकलीफ तो होने ही वाली है, जिंदगी का मतलब ही है तकलीफ, सुख दुख सब आने वाला है. बट हमारे हाथ में जितना है हम उस हिसाब से अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर्ड रख सकते हैं. तो ये एक चीज है. तो मैंने अपनी रूटीन स्किप करने लग गए, मैं अपने फ्रेंड्स को स्किप करने लग गई. इनफैक्ट मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी हु डिड नॉट लाइक दिस गाय, एंड दे प्लान्ड अ गोवा ट्रिप और समथिंग लाइक दैट. एंड देयर वर अदर गाइज ऑल्सो हु वाज कमिंग इन दिस गोवा ट्रिप, एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक तू भी चल. सो मैंने तो बोल दिया नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो ही मैं चलूंगी. एंड दे वर लाइक नो, वी डोंट वांट हिम. एंड गेस व्हाट, I straight away told them on their face, अगर तुम लोग को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए तो मैं नहीं आने वाली हूँ. जो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में आपको. अब तक आपको लगेगा क्या भारतीय नारी है, कितनी लॉयल है ये बंदे, और शायद हर लड़का यही ऐसी लड़की चाहेगा. और मैं ऐसी ही लड़की हूँ, मुझे ऐसा ही रहना पसंद है. जहां मेरा बंदा इनवाइटेड नहीं है वहां मैं नहीं आऊंगी. बट अब जब मेरा ब्रेकअप हो गया है, यही मेरी फीमेल फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही है कि बहुत लड़ रही थी ना इसके लिए, हो गया ना चॉप. एंड आप सोच रहे हो कि ब्रेकअप क्यों हुआ, इतना अच्छा लड़का था या तू इतनी अच्छी थी. तो वो एक अलग ही स्टोरी है. ब्रेकअप की स्टोरी क्यों हुआ क्या हुआ उसमें नहीं पढ़ते हैं. बट हाँ, इतना मैं आपको बता दूंगी कि गलती उसके तरफ से थी, मेरी तरफ से भी होगी बट थोड़ी बहुत कम थी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू द प्रेशर ऑफ कमिटमेंट और ऑफ अ फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल. उसे वो प्रेशर नहीं चाहिए था. So, anyways, that's a different story. But because I was too loyal for him, I skipped my female friends, I skipped my male friend, I skipped my routines, I literally skipped myself and my life, and he skipped me. So, don't do this, do not. Girls, third and the very worst mistake that you can do is loving him unconditionally. सो ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, फेरी टेल लगता है, बॉलीवुड रोम कॉम टाइप लगता है कि आप किसी शख्स को अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो, बट इससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आने वाली है और कुछ नहीं आने वाला है. एंड मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये चीज म्यूचुअल है, if unconditional love is mutual between you and your partner, then it's beautiful, okay? Then do not give up on it. But only if it is one sided, which was in my case, then it's not a good thing, because कुछ तो आँख में गया मेरे. सो अनकंडीशनल प्यार से मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी शख्स को हर तरीके से अपनाने को तैयार हो, ठीक है. फिर चाहे वो फाइनेंशियली सही ना हो, फिर चाहे उसकी सेविंग्स ना हो, फिर चाहे वो कैसी भी जिंदगी जी रहा हो एंड आपके एम्बिशंस मैच ना हो रहे हो, आप बस अब प्यार में पड़ गए हो. सो नाउ यू विल हैव टू वर्क इट आउट. इट शुड नेवर बी लाइक दैट. एंड द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गिव अप ऑन योर पार्टनर. हर इंसान को मौका मिलना चाहिए सुधरने के लिए, सुधार लाने के लिए. बट अगर वो इंसान नहीं सुधर रहा है, एक बार चांस दो, दो बार दो, तीन बार दे दो, तीसरी बार अगर फिर भी वो शख्स वही हरकतें कर रहा है, देन उसको बाय बाय कर दो, सी ऑफ कर दो, बिकॉज वो शख्स नहीं बदलने वाला है. तो अनकंडीशनल प्यार इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर आपके कुछ एम्बिशंस है, अगर आप किसी फ्यूचर के टूवर्ड्स काम कर रहे हो, सो यू नीड योर गाय टू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड बैकअप फॉर यू, यू नो. And he needs to be financially strong. I don't mean to say that he needs to have lakhs in his account or he should be earning in lakhs. No, but he should have some sort of financial intelligence. कुछ तो financial knowledge होनी चाहिए about savings, about assets, about liabilities, about how money works. Because if he does not inspire you, you will like be very miserable and your financial life will be very miserable. So यहाँ पर I'm not going to use my example because I don't want to drag any of guy or my ex-boyfriend or my relationship into this, but I'm going to give you my advice from my relationship that आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, because मुझे नहीं किसी शख्स का कुछ भी इस तरीके की लाइफ को रिवील करना है या बताना है.
बट आपको बेसिकली ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत पुअर हो, जो सिर्फ आज जीने में यकीन करता हो, पैसा आओ उड़ाओ खा पी जाओ, बिल्कुल भी नहीं. ही नीड्स टू हैव सर्टेन सेविंग्स, ही नीड्स टू हैव अ बैंक बैलेंस. एंड हो सकता है बहुत सारे लड़के ट्रिगर हो इस चीज पे, दे माइट से यू गोल्ड डिगर, बट हु केयर्स डार्लिंग, बिकॉज दीज गाइज विल लिटरली सिलेक्ट यू बेस्ड ऑन हाउ यू लुक. एंड अगर हमने जरा सा मांग लिया कि बैंक बैलेंस है या नहीं, एसेट है या नहीं, कमाई है या नहीं, तो हमें गोल्ड डिगर डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो एफ यू फॉर योर ओपिनियन, आई डोंट केयर. अगर तुम्हें हमें गोल्ड डिगर बुलाना है बुला लो बेशक, वी डोंट केयर. सो यू नीड टू हैव अ मैन हु इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, who is financially sound and has intelligence, and at the same time he needs to have his own voice, you know. तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अरे वो अभी थोड़ा डरता है बोलने से, या फिर अरे उसे अभी इतनी समझ नहीं है, एंड हो सकता है ना भी हो, थोड़ा वक्त दो. मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप आज के आज खत्म कर दो या उस इंसान को मौका मत दो, बट कुछ चीज़ है, जैसे अगर आप एम्बिशियस हो एंड वो अगर नहीं है, तो आप उसे समझाओ, सही रास्ते पर लेकर आओ. मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको एम्बिशियस होना जरूरी है, बट सबके लाइफ में गोल होना जरूरी है. और अगर उस बंदे में वो गोल नहीं है, so you need to make him explain once, twice, or maybe thrice. But then if that person is going to still be the same, that lazy pig, then you need to dump him and you need to find a man who's going to inspire you more. Because अगर आप inspired feel नहीं करोगी ना girls with the guy you are with, then you're not going to have respect towards this guy. And हम girls के लिए love से ज़्यादा respect is more important towards the guy that we are with, you know. So that is the reason I'm saying do not love him unconditionally, that oh उसके पास पैसे नहीं है तो भी आई एम गोना रश इनटू मैरिज, ओ ही डज नॉट हैव सेविंग्स, सो व्हाट मैं अपनी सेविंग्स चला लूंगी, या फिर ओ ही डज नॉट हैव अ जॉब, कोई बात नहीं मैं घर चला लूंगी. कुछ टाइम तक ये सब चीजें अच्छी लगती है, कुछ वक्त दे भी दो, रिलेशनशिप डंप मत करो, मैं अगेन कह रही हूँ. बट वो चीज ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि आप उसमें खिंचे जा रहे हो, बिछे जा रहे हो, एंड वो चीजें ऐसी ही चल रही है. क्योंकि ये चीजें होती है, हमें ऐसा लगता है अब हम रिलेशनशिप में आ गए तो रिलेशनशिप में आने का मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना, बट ऐसा नहीं है. गिव अप करो, क्योंकि अगर गिव अप नहीं करोगे तो तुम खुद पर गिव अप कर दोगे, अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दोगे. वी वुमेन वी हैव टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए वी नीड अ मैन हु इज financially, emotionally, physically, you know, in a certain space, and he needs to have a goal plan towards it. He might not have everything figured out now. You can build everything together, but he needs to have a goal. और वो mindset जब तुम relationship में रहोगे ना, तुम्हें अपने आप समझ जाएगा, automatically दिख जाएगा कि या क्या ये बंदा तुम्हारे future goals के साथ aligned है या नहीं. और अगर नहीं है तो या तो म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल टर्म्स पे, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज कर आ जाओ. बट अगर नहीं हो पा रहा है एंड सिर्फ आपको करना पड़ रहा है, जो मेरे केस में मैंने किया है, तो इससे कुछ होने नहीं वाला है. आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप सिर्फ परेशान रहोगे कि क्यों ये सुनता नहीं है, क्यों ये सुनता नहीं है, एंड उससे रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द डे टूट जाएगा. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग डू नॉट लव हिम अनकंडीशनली. ही नीड्स टू नो यू दैट if he needs to earn you, if he needs to marry you, if he needs to come and talk to your parents, he needs to prove certain conditions. Love marriage है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम फ्री में बिछ जाओ, बिल्कुल भी नहीं गर्ल्स. अपनी वर्थ पहचानो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ बेबी इनटू दिस वर्ल्ड, एंड दैट बेबी डिजर्व्स अ लाइफ फुल ऑफ financial freedom, mental freedom, emotional freedom, every sort of freedom जो शायद तुम्हें बचपन में ना मिली हो, बट तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल हक है उसका. So that is the reason. Grow together, love together, but if it's one-sided, do not love him unconditionally. And that's it girls for this video. ऐसे देखा जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है मेरी गलतियों की. मैं एक क्या है वो राखी सावंत का डायलॉग, गलती इंसान का पुतला हूँ, तौबा 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 तौबा. बहुत गलतियां करी है मैंने, बट आई थिंक दीज आर द टॉप 3 मिस्टेक्स जो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई की जाती हैं इन योर बॉलीवुड रोम कॉम्स, इन योर नॉवेल्स, इन सोशल मीडिया. बट ये सारी गलतियां मैंने करी है, एंड यू नो आई गॉट ब्ला ब्ला ब्ला. वापस बार बार बोलना नहीं मुझे अपनी बेइज्जती कराने के लिए. बट अगर आपके पास कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए हम गर्ल्स को, तो प्लीज कमेंट करना, हेल्प द गर्लीज आउट देयर, मुझे भी बताना, ताकि आई डू नॉट डू दिस in my next relationship. And if you want to know what are other mistakes that I've done in my relationship because of which I got blah 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 dumped, then comment for part 2 of this video, and I will see you in next video. I don't know what it is, but if you comment for a part 2, I will make it. And until then, be the cute little red flag that you are. Red ho, green ho, kaun sa bhi shade ho,
जैसे भी हो अपने आप को अपनी दुनिया बनाओ गर्ल्स, किसी और के साथ अपनी दुनिया को मिक्स मत करो, क्योंकि अगर वो शख्स चला गया तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। अपनी दुनिया तुम हो, तुम्हारा सब कुछ हो, सब कुछ। I love you all. Take care. Happy Christmas and Happy New Year.